एक खजाना था। अचानक माया की नजर एक चीज पर पड़ी। वो एक शेल्स था, लेकिन उस जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो सोने की तरह चमक रहा था। माया उसकी तरफ दौड़ी। उसका दिल खुशी से जोर से धड़क रहा था। वाह! राहुल ने भी हैरान होकर कहा। माया ने जल्दी से उसे उठा लिया। ये मेरा है, उसने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। राहुल पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। तुमने उसे ढूंढा है माया, ये तुम्हारा है। हालांकि माया संतुष्ट नहीं थी। सुनहरे शेल्स ने उसके अंदर एक अलग ही एहसास जगा दिया था। वो और चाहती थी, किसी और से भी ज्यादा। वो हर सुंदर शेल्स को उठाने लगी जो उसे मिल सकता था, यहां तक कि वो भी जो राहुल को पसंद थे। उसकी बाल्टी भर गई। उसे एक टोकरी मिली और उसने उसे भी भर लिया। माया, राहुल ने धीरे से कहा, क्या तुम्हारे पास काफी नहीं है? तुम्हारे पास पहले से ही सबसे अच्छा वाला है। माया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे और चाहिए, किसी से भी ज्यादा। वे वापस चलने लगे। राहुल ध्यान से चुने हुए सीपों की अपनी बाल्टी के साथ हल्के से उछलता हुआ चला। माया संघर्ष कर रही थी। टोकरी भारी थी और सन तेज थी। एक समय पर सुंदर लगने वाले शेल्स उसकी त्वचा पर खुरदुरे और असहज लग रहे थे। उसकी पीठ दुख रही थी, उसकी बाहें दुख रही थीं, लेकिन माया ने किसी भी शेल्स को पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके पास सबसे ज्यादा होने चाहिए थे, भले ही इसका मतलब दुखी होना ही क्यों I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बच्ची बहुत कुछ पाने में नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे पास है उससे खुश रहने में है। करने में ही ताकि है। उतर गया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उसने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि हर कोई बस ठहर कर उसे निहारने लगा। समुद्र की लहरें भी इस रंगीन आकाश के नीचे और भी सुंदर लग रही थी। यह एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए यादों में बस जाने वाला था। माया और राहुल हाथ में हाथ डाले घर वापस चले गए। उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जैसे कि उन्होंने इस दिन से कुछ खास पाया हो। वे धीरे धीरे चलते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से रेत पर निशान छोड़ते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनके बीच की यह मासूमियत और प्यार इस शाम को और भी खास बना रहा था। माया की टोकरी अब बहुत हल्की थी, केवल उन सीपों से भरी हुई थी जो खुशी जगाते थे। उसने बड़ी मेहनत से इन सीपों को इकट्ठा किया था और अब वह उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए उत्साहित थी। हर सीप में एक कहानी छिपी थी और माया को यह कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। खुशी सबसे ज्यादा पाने से नहीं मिलती, बल्कि यह उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जो हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताने को मिलते हैं। माया ने महसूस किया कि असली खुशी उन चीजों में है जो हमारे पास पहले से ही है और उन्हें सराहने में है, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी सराहना करने और अपने प्रियजनों के साथ साझा करने से मिलती है। माया और राहुल ने अपने सीपों को एक दूसरे के साथ साझा किया और इस छोटे से कार्य ने उनके बीच के बंधन को और भी मजबूत बना दिया। वे हंसते खेलते एक दूसरे को सीपों की कहानियां सुनाते हुए इस पल का पूरा आनंद ले रहे थे। समुद्र तट ने अपनी फुसफुसाती लहरों और छिपे हुए खजानों के साथ
उसे संतोष का महत्व सिखाया था। हर लहर जो किनारे से टकराती थी एक नई कहानी लेकर आती थी। माया ने महसूस किया कि जीवन भी इन लहरों की तरह है, कभी कभी शांत, कभी कभी तूफानी, लेकिन हमेशा कुछ नया सिखाने वाला, और वह किसी भी सुनहरे सीप से भी ज्यादा कीमती था। माया ने अपने हाथ में एक सुनहरी सीप को देखा और मुस्कुराई। उसने समझा कि असली खजाना वह खुशी है जो हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों में मिलती है। यह एहसास किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान था।